We had already discussed theme and main characters of the chapter. So now we were discussing main points, in which we discussed that when the rat trap peddler, who was not having too much faith in worldly people, so one evening he was going by the roadside and he wanted to spend his night somewhere. So when he saw a cottage, then he went near the cottage. He knocked and he got the shelter. In that cottage, there lived a crofter who used to live alone. So in fact, he also wanted company of someone. So that was a nice thing that someone had come to spend that night with him. So he just provided him with all the facilities that night. He provided him good food and tobacco to smoke. And then he shared his secret as well, that he had kept 30 kroner bills beside the window pane. That was hanged in a leather pouch. Leather pouch में वहाँ पे लटका हुआ है. That he also shared. So rat trap peddler stole that money that morning, which we had discussed last, and then he took the path of forest because he was scared that if he goes to the straight road, then police may come and catch him. So he took the way through the jungle or forest, where he got lost, and then he heard the thumping sound from Ranzo iron mill. There he went at night and he just wanted to take shelter. So main Master Smith allowed him to stay there. There came the iron mill master, iron work master, means उस मालिक आता है वहाँ का, and he just mistakes him for his one of the old acquaintance, Neil Solo. This much we had discussed. When he requests him to spend his night with them, then he refuses because he was so scared. वो तो बस अपनी identity जो rat trap peddler है इसलिए नहीं बताता है because he was thinking that that iron work master means the iron mill master is a rich person. So obviously if he is mistaking him as his old acquaintance, then obviously he will provide him some money. So he does not in fact want to reveal his identity. But when he requested him to come with him at home, then he refuses because he was scared to be get caught by police because he was having that 30 kroner bill note. So he refused. But Iron Master was not very easy person to give up. So he went back home and he sent his daughter Edla Wilmanson. This much he had discussed. His daughter Edla Wilmanson persuaded to go move herself. जब एडला आती है तो उसको वो कन्विंस कराने की कोशिश करती है कि वो उनके साथ इवनिंग कुछ एक दो दिन स्पेंड करे क्रिसमस ईव पे. She requested him to stay for Christmas Eve only. अब वो बाद में जब नहीं मानता है तो कहती है कि वो क्रिसमस ईव बस उनके साथ स्पेंड कर ले और उसके बाद वो he will be free to go, he will be allowed to go wherever he wants. On his way to the manor's house, जब वो जमींदार मतलब आयरन मिल मास्टर के घर पे जा रहा होता है, the peddler thought that he had thrown himself into the lion's den. उस समय उसके दिमाग में एक थॉट आता है कि उसने अपने आप को शेर के पिंजरे में फेंक दिया है, क्योंकि एक तो उसने चोरी की है, he was having those stolen notes, वो उसके पास stolen notes है, और दूसरा अब वो जा रहा है किसी और के घर where he can easily be caught. तो अब उसको लगता है कि उसने अपने आप को पूरी तरह से फंसा लिया है. The next day in broad daylight, the Iron Master realized that the stranger was not the captain and threatened to call the sheriff. अब अगली सुबह जब होती है, he had given a good bath and shaving, and he had been given a good dress to dress up with. Iron Master का एक अच्छा सा ड्रेस देती है एडला और उसको नहला धुला के जब क्लीन होता है, वो क्लीन शेव होता है, तो फिर आयरन मास्टर को समझ में आ जाता है कि ही इज नॉट हिज ओल्ड एक्वेंटेंस नील्स ओलोफ. वो नील्स ओलोफ नहीं है, ये उसको समझ में आ जाता है. तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है. he gets angered and then he just threatens him that he will call sheriff or police. उसको डराता है कि अब वो पुलिस को बुलाएगा और उसको हैंड ओवर कर देगा, क्योंकि उसने अपनी ट्रू आइडेंटिटी छुपाई है और अपने आप को किसी और के तौर पे प्रेजेंट किया है.
एडला प्लेडेड फॉर हिम। अब एडला जो है शी इज सॉफ्ट हार्टेड, शी इज कंपैशनेट, तो उसको नहीं अच्छा लगता है कि उसका फादर इस तरह से उसको, जिसको वो लोग खुद इतने रिक्वेस्ट करके अपने घर पे लेके आया है, उसको इस तरह से फोल्ड करके और प्रिटेंड करके घर से निकल जाने को कहे, वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो एडला रिक्वेस्ट करती है एंड आस्क हिम टू स्टे बैक, और कहती है कि वो एक दिन के लिए उनके साथ रुक जाए। उस दिन के लिए वो उसको रुकने का रिक्वेस्ट करती है अपने फादर से कि he should spend his evening with them. Christmas Eve was at Aranzo was usual and the strangers slept and slept. अब उस शाम की बात होती है तो वो स्ट्रेंजर बिकॉज आयरन मास्टर अलाउ कर देता है उसको कि ठीक है वो एक दिन के लिए वहां पे रुक सकता है एंड देन ही विल हैव टू लीव द हाउस। तो उस दिन जब उसको परमिशन मिल जाता है आयरन मास्टर की तरफ से उस रैट पेडलर को, तो उसको जब खाना खाने को मिलता है और एक अच्छी सी शेल्टर मिलती है जहाँ पे कि वो बिल्कुल केयर फ्री होके सो सकता है। आज तक उसको कहीं पे भी इतना ज्यादा सोलास और पीस नहीं मिला था, कहीं पे भी इतनी शांति नहीं मिली थी कि वो अपनी इवनिंग को इतने अच्छे से स्पेंड कर सके। तो उस दिन वो कुछ भी नहीं करता, बस खाना खाता है और सोता है। उसको जब जगा के लेके आते हैं तो he just comes, stand as formality and then again he goes back and sleeps well. बस वो सोता रहता है पूरे समय। She made him understand that if he wanted to rest and peace, he would be welcome next Christmas also. और एडला इसके साथ उसको कहती है कि अगर अगले क्रिसमस पे भी उसको इस तरह से कुछ समय के लिए चैन, शांति और आराम से बिताना है तो वो अगले क्रिसमस पे भी वेलकम है। दिस हैड अ मिरेकुलस इफेक्ट ऑन हिम, और इसका एक बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक असर उसके ऊपर होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दे वेंट फॉर अर्ली चर्च सर्विस लिविंग बिहाइंड द गेस्ट हु वाज asleep। अब अगली सुबह जब होती है, क्रिसमस का दिन होता है, तो एडला और उसके फादर दोनों चर्च में सर्विस करने के लिए जाते हैं, जैसे सेवा करने के लिए, गरीबों की सेवा करने के लिए, दान दक्षिणा करने के लिए वो लोग चर्च जाते हैं क्रिसमस के दिन। और ये जो होता है रैट पेडलर, वो उनके घर पे आराम से सो रहा होता है। चर्च में उन्हें क्या पता चलता है कि कोई एक आदमी है जिसने क्रॉफ्टर के पैसे चोरी कर लिए हैं। अब उनको बिल्कुल भी जैसे उसको हुलिया बताया जाता है उसका, तो दे आर क्वाइट श्योर दैट दिस इज नन अदर देन द रैट पेडलर whom they have sheltered at their home। अब उनको समझ में आ जाता है और उसके साथ दे गेट स्केयर्ड दैट अब तक उसने क्या क्या चुरा लिया होगा उनके घर से और भाग गया होगा, बिकॉज ही इज लेफ्ट अलोन एट होम, दे बोथ आर आउट। तो उनको डर लग जाता है कि पता नहीं उसने क्या क्या उनके घर से ले लिया होगा। एडला बिकेम वेरी अपसेट व्हाइल कमिंग बैक। एडला जो होती है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि बिकॉज शी वांटेड दैट शी हैड गिवन शेल्टर टू अ पुअर पर्सन, नीडी पर्सन, बट नाउ इफ he has stolen something then it is not the worth, he was not the worth giving shelter in their house। तो she was very upset। वो सोच रही है कि पता नहीं उसने क्या किया होगा, she is not confident about his activities। मुझे पता चल गया कि वो एक चोर है। तो एडला को समझ में नहीं आता कि अब पता नहीं क्या हुआ होगा, तो बहुत ज्यादा दुखी होती है। They reach home immediately and learn that the peddler had already left। जैसे वो घर पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि पेडलर वहां से जा चुका है, बट हैड नॉट टेकन एनीथिंग। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसने वहां से कुछ भी नहीं लिया है। Instead, he had left a small packet for young girl as a Christmas present। बल्कि इसके बदले उसने एक उस लड़की के लिए क्रिसमस प्रेजेंट एक छोड़ा हुआ है, एक पैकेट छोड़ा है जिसमें उसने एडला के लिए कुछ क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पे रखा है। She opens the packet and finds a rat trap। जब वो पैकेट खोलती है बहुत खुश होती है एडला, और जब वो पैकेट खोलती है तो देखती है कि एक छोटी सी उसमें रैट ट्रैप है, चूहेदानी रखी हुई है। 3 wrinkled ट्रेंसपोनर में, और उसमें साथ ही उस रैट ट्रैप के अंदर रखा हुआ है वो जो नोट के 3 क्रोनर बिल्स जो थे, नोट जो उसने चुराए थे क्रॉफ्टर के यहाँ से, वो उसमें एज अ गिफ्ट रख रखा था। एंड ऑल्सो अ लेटर विद अ रिक्वेस्ट टू रिटर्न द क्रोनर्स टू द क्रॉफ्टर। और उसमें लेटर में ये रिक्वेस्ट था कि वो क्रोनर्स जो थे वो क्रॉफ्टर को वापस कर दिया जाए।
So this is all about. Now the end of this story leaves us with a good thought and good vibe that the rat trap peddler with the Edla's will mentions good behavior, compassion, which he showed towards him, love, faith, belief, understanding, which he showed towards that rat trap peddler, in fact transformed him. उसने उसको चेंज कर दिया था. Earlier he was disbelieving that how can anyone be very good to him without any self need or means greed. How can anyone be so good to him? वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कोई भी ऐसा कैसे हो सकता है. Then, but when again and again Edla showed compassion and love and understanding towards him, she cared him a lot. And after that, he got to know that she was not having any other intention that giving him peace and comfort. इसके अलावा उसका कोई भी इंटेंशन नहीं है. जब रैट ट्रैप पेडलर को पता चलता है, then he realized that no, there are people in this world who are good by heart and who take care of others without any selfish need. बिना किसी अपने मतलब के भी दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों का ख्याल रखता है. तो ये जो था, ये थॉट जो थी, वो रैट ट्रैप पेडलर को कम्प्लीटली चेंज कर देती है. एंड इन दी एंड ही रिटर्न दो स्टोलन नोट, वो स्टोलन नोट भी रिटर्न करता है और एडला को एक छोटा सा रैट ट्रैप गिफ्ट के तौर पे भी छोड़ के जाता है. So this is the story of rat trap peddler, and then let us see, we will read the chapter. Just you have to wait for a minute so that I can share.